Okay, so first of all, we'll go through what we have done in the last session, and then we'll be moving towards the remaining module. Okay, so we were. Let me remind you that we were in the second chapter, that is GSM fundamental, and in this GSM fundamental, we are having a lot of topics related to the GSM. We started with the services. Actually, which में काफी gap हुआ है, so there is a need of recap, or we can say revision, for just for 1 or 2 minutes, so that at least you will be having those things in your mind for learning the next topic. Okay, so we have gone through the introduction part, the basic part, the services, the basic services where GSM is providing their features. Okay, that features we have seen in this term. The mobile services, those mobile services. Thank you. So those services are on three terms. Like first is the data services, second is the voice service, and third is your additional services. Okay, so your GSM permit your voice also, data also, and other, that is we call it as an integrated service. Okay, so integration of all the services at one place becomes the ISDN one. Okay, उसके बाद में फिर ये सारों का एक्सप्लेनेशन था, एंड आफ्टर दैट वी केम टू द आर्किटेक्चर पार्ट. अच्छा, ये लोगों ने सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी देखे. We came to the system architecture, and then after coming to this topic, we came to know that we are having three subsystem. One is R, second is N, third is O. R, N, O. Okay, so RSS, that is radio subsystem, network and switching subsystem, and the operation subsystem. Okay, so your GSM architecture will consist of these three subsystems. Okay, so we'll be discussing about these three subsystems. So regarding this architecture, we have already gone through this architecture. Okay, or we can do simple diagram है बस, but system architecture बोलते हैं इसको. Okay, and इसको हम लोगों ने काफी टाइम दिया था, and we have gone through that. This is the first column, which consists of the mobile station, in which your mobile equipment, that is your mobile का आपका जो mobile है, which is having SIM inside, which is already loaded inside the mobile equipment, जो कि हमारे यूजर के पास में है. दैट यूजर इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ दिस कार. यूजर इज मूविंग here and there. Okay, so your mobile station, then again you are having basic station subsystem, which consists of BTS and BSCs. Okay, and the complete structure is in the we can say tree like structure, where it start from the mobile equipment, then BTS, then BSC, and then will goes up to the MSC. MSC is using what? MSC, that is Mobile Services and Switching Center, which is carrying two databases, that is HLR and VLR. We had a discussion about this HLR and VLR also. These two types of registers and databases are maintaining the user's information in order to in order to have complete information, that is anytime information, all the time information हमको available रहेगी with the help of HLR and VLR. Okay, we'll just revise about the HLR and VLR also. Then again in the third section we are having EIR, AUC, OMC. All these are in the third section. Okay, so let us start with the हम लोग का हो चुका है. In the network and switching subsystem, we are having MSC, HLR and VLR. Okay, so what is HLR? HLR के बारे में एक छोटा सा हम लोग देखे थे. This is the most important part, and it is having all basic information of the user, like what are the different services which the user has subscribed. Okay, maybe roaming restriction, forwarding, GPRS यानी कि 4G लिया है, 3G लिया है, messages service लिया है, and all that. Okay, some dynamic information is also needed, like the current location of the mobile station. Okay, if the user is not present on the current location, maybe it is present on the another location, maybe in a foreign location. Okay, so if the user is present in the foreign location, so the user might have got, or user might have received the MSRN number also, like mobile subscriber roaming number. So और जो उसका करंट VLR है कौन है, एंड MSC कौन है, इसका मतलब करंटली अभी कौन से BTS को कनेक्टेड है, और वो BTS कौन से PSC को कनेक्टेड है, और वो PSC कौन से MSC को कनेक्टेड है. सो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विल बी देयर इन द HLR इटसेल्फ. ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड कि ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपका HLR इज मेंटेनिंग. ओके, एंड देन when your mobile station leaves the current area, okay, so current location area,
the information in the HLR is again updated, because when it is moving to the next cell, then he will be connecting, the user will be connecting to the next, we can say BTS. okay. So अगर अपने एरिया में भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं थोड़ा सा 1 किलोमीटर भी चल गया, थोड़ा सा चला गया बाइक से, so my BTS will be changed. okay. So if my BTS is getting changed, then that particular information will be updated inside the HLR also. ठीक है. तो लोकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो HLR स्टोर करता है. You need to keep it in this broad term. okay. Coming to the VLR, again about VLR also we had a discussion. VLR associated to each MSC, मतलब ये MSC से अटैच है. ठीक है. आई थिंक हम लोग ने VLR नहीं किया था, तो VLR करते हैं अभी. ठीक है. सो HLR के बारे में तो समझ में आया. आई होप आपको समझ में आया होगा HLR के बारे में. व्हाट HLR इज मेंटेनिंग, योर HLR इज मेंटेनिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर, लाइक इसका ISDN, उसका इसको हम लोग बोलेंगे नंबर भी, इसके इतने बड़े बड़े नंबर है ना, याद नहीं होते हैं. MS ISDN नंबर, ने मोबाइल सब्सक्राइबर ISDN नंबर, there are the different services to which the user has subscribed. okay. And उसका current location, if it is located in the foreign location, then foreign location का BTS, उसका MSC, हर एक information, उसका कौन से VLR से connected है, वो सारी information आपके HLR के अंदर information maintain रहेगी. okay. Now coming to the visitor location register, that is VLR. okay. Now the very first thing is that your VLR is associated to each and every MSC. तो वो भी आपका HLR भी हर एक MSC के पास में रहता है. ठीक है. इट मीन दैट के ऑल द MSC, जितने भी MSC है, फॉर एग्जांपल हमारी पूरे इंडिया के अंदर अगर आप डिवाइड करेंगे, देन यू कैन गो बाय मींस ऑफ स्टेट के अंदर फिर जाओगे आप तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जाओगे तो आपको सिटीज मिलेंगे, और सिटीज के अंदर और जाओगे तो आपको एरियाज मिलेंगे, सेक्टर्स मिलेंगे. सो ये जो आपके लोकेशंस है, सो फॉर दीज लोकेशंस वी कैन हैव डिफरेंट MSCs. अब MSCs मैंने आपको बताया कि ऑल दीज डिवाइसेस एंड ऑल दीज सेटअप इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन द इंस्ट्रूमेंट विल बी इंस्टॉल्ड. ओके. ऐसा नहीं है कि चलो भाई इतना एक आइडियल कंडीशन है कि 5 किलोमीटर में एक आपका BTS रहेगा, 5 किलोमीटर के एरिया को कवर करने के लिए BTS. So that is for the ideal condition. okay. But for the practical condition, when you see if the area is very congested and if the area is very populated, then you need to think that this 5-kilometer area cannot be covered by only one BTS. okay. So for that you need at least 2 BTS, या फिर कम से कम 80% या 60% कवर किया है, और the remaining can be covered by any other BTS. okay. So as I told you, the instruments are installed based on the density of the population. okay. VLR associated to each and every MSC in a dynamic database. Sorry, it is a dynamic database which stores all important information needed for the mobile system. okay. User currently in the location area that is associated to the MSC, example. okay. So it is maintaining some basic information like IMSI number, MSISDN number, जो कि वो भी maintain कर रहा था. Maybe there is a possibility that के some of the information are duplicated, मतलब दोनों जगह पे हो सकती है, but that is maintained. okay. So some of the information will be there in both the databases, like in VHLR and HLR also. तो HLR VLR में कुछ information common हो सकती है. HLR एड्रेस. ठीक है. HLR आपको होम लोकेशन कौन सा था भाई इसका, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बंदा पहुंच गया यहाँ से किसी और लोकेशन में. ठीक है. तो वहां जाने के बाद में तो उसको आपका जो HLR है, that HLR is going to update the information inside the HLR database. The information will be stored. okay. And after that the VLR is also going to store the ये कहाँ से आया है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम से बताता हूँ, तो उससे आपको अच्छे से समझेगा. तो ये आपका एरिया, ये आपका एक एरिया, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो ये आपका होम लोकेशन है. ठीक है. तो आप यहाँ से आप मूव होके यहाँ से चले गए यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो VLR है, तो VLR क्या करेगा, VLR अपने पास में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा कि जो बंदा है, जो यूजर है, जो यहाँ से आया है, ये फॉर एग्जांपल हमारा है इसको बोलेंगे हम XYZ. ठीक है. XYZ एरिया से आया है, एंड दिस इज द PQR. ओके. सो ये जो बंदा है
इस बंदे का नाम है एक्स, ठीक है। तो एक्स बंदा XYZ से आया है PQR में, ठीक है। तो एक्स का जो HLR है, तो एक्स का HLR कौन है, XYZ है, ठीक है। सो द पर्सन बिलोंग्स टू XYZ रीजन, ओके। सो द VLR is going to maintain the information, the VLR is going to maintain the information, that information also, that is HLR address। मतलब ये जो बंदा जो घूम फिर के हमारे पास में आया है, इसका HLR एड्रेस कौन सा है, ठीक है। तो उसका HLR एड्रेस भी आपका VLR मेंटेन करता है, ठीक है। तो आपको खाली काउंट करते जाना है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ये डेटाबेस मेंटेन करते हैं, ओके। इफ अ न्यू मोबाइल स्टेशन कम्स इनटू, मैंने एग्जांपल के साथ में थोड़ा सा उसको थोड़ा सीन समझ में आया आप लोग को, उसका कंडीशन, सिचुएशन, सिनेरियो समझ में आया, इसके लिए मैंने स्टेटमेंट डाला था। इफ अ न्यू मोबाइल स्टेशन कम्स इनटू अ लोकल इन द लोकेशन एरिया, LA को मैं हमेशा लोकेशन एरिया लिखा हूँ। So into a location area, the VLR is responsible for it copies all relevant information for this user from the HLR। मतलब ये जो बंदा था, कहाँ था रे, मेरा कर्सर नहीं दिखता मुझे, हाँ ठीक है। तो हाँ, ये बंदा जो था एक्स, जो मेरा बंदा था, वो यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। आने के बाद में आपका जो यहाँ का जो VLR रहेगा वो क्या करेगा, VLR जो है ना, इसके एसोसिएटेड मतलब XYZ के जो रीजन है उसका जो HLR रहेगा यहाँ पर, तो उस HLR में से क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेगा। HLR में से किसकी इन्फॉर्मेशन, ये X वाले बंदे की इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करेगा और अपने पास VLR में मेंटेन कर लेगा। why he has done entry in the VLR, बिकॉज उसको भी पता होना चाहिए ना, उसके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि हमारे पास में, मतलब बोलते ना हम लोग visitors register, okay। So why we call it as a visitors register, because someone is visiting in our society। So जो कोई अगर विजिट कर रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने रजिस्टर रखा है। if someone is coming from any other society, from any other location, so he will come into our society and will register, and will write his or her name, will location, mobile number, sign, कब आया कब गया, every information will keep। why, बिकॉज आगे चल के अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देन विल कम टू नो कि भाई हाँ ये वाला बंदा आया था, ये लोकेशन से आया था, इसका मोबाइल नंबर ये है, इतने बजे आया था, इतने बजे गया था। in the same way your VLR is going to maintain the information। your VLR is responsible to copy all the relevant information of the user from the HLR, ठीक है। तो यहाँ पर सीन अलग है, वहां पर यूजर खुद एंट्री करता है और यहाँ पर ये वहां के VLR से कॉपी कर लेता है। तो वहां के वहां के HLR से कॉपी करके ये VLR में डाल देगा, ठीक है। तो ये बंदा इस HLR से आया था, उसकी एंट्री ये है, ठीक है। सो VLR का और एक इंपॉर्टेंट काम समझ में आया, ठीक है। इफ एनी न्यू मोबाइल स्टेशन कम्स इनटू द एरिया दैट इज इन द लोकेशन एरिया, देन इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर VLR to maintain the information of that particular user, and just copy all the relevant information from the respective HLR। from the respective HLR मतलब वो जहां से आया वहां से, वहां के HLR से इंफॉर्मेशन कॉपी करके अपने VLR में मेंटेन कर, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को ये चीज। तो VLR का ये एक इंपॉर्टेंट काम। एक और चीज पहले है, I know this hierarchy of VLR and HLR avoids frequent HLR updates and long distance signaling of users information। So basically cause of this entry and cause of this information which are being shared and which are being maintained by the HLR and VLR, तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जो है तो हमको करंटली मिल सकती है, हमको डेटाबेस अवेलेबल हो सकता है, एंड फॉर द फ्यूचर पर्पस आल्सो, फॉर अदर सिग्नल आल्सो हु वांट्स टू गो फॉर द सेम डेस्टिनेशन, फॉर द सेम एड्रेस, तो उनके लिए भी एक अच्छा टेबल जैसा काम करता है, ठीक है। फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग ऑफ यूजर्स इंफॉर्मेशन, तो वहां पर ये आपको मतलब के बार बार की अपडेट के लिए, मतलब बार बार जो अपडेट करते हैं ना हम लोग, तो वो उससे हम लोग बचेंगे। मतलब आपके HLR के अंदर बार बार एंट्री ना करना पड़े VLR में, तो एक बार अगर एंट्री हुई और बाद में वही बंदा अगर आता है तो वी हैव द डेटाबेस फॉर हिम, ओके। तो dynamic database, it stores that information, it stores that information inside the VLR by copying the relevant information from the respective HLR, okay। तो HLR से कॉपी करेगा, VLR में अपने खुद में स्टोर करेगा VLR, okay।
हाँ समझा आप लोग को यहाँ तक? पहले बताओ मुझे, वीएलआर हम लोग ने जस्ट वीएलआर डिस्कस किया अभी। मेन जो टास्क है एच आपके वीएलआर का वो यही है, इफ एनी न्यू मोबाइल स्टेशन कम्स इनटू द एरिया, देन उस पर्टिकुलर मोबाइल स्टेशन की रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वो जहां से आया है उस जगह के एचएलआर से कॉपी करने का और अपने यहाँ पे पेस्ट करने का। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ वीएलआर। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। समझ में आया है आप लोग को? ठीक है। सो क्योंकि देखो ये स्मॉल क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन मे बिकम द वाइवा क्वेश्चन आल्सो। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑन द मेन टास्क और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ योर वीएलआर? एचएलआर का काम है क्या है, तो एचएलआर का बता सकते हैं, वीएलआर का हम लोग बता सकते हैं। कमिंग बैक टू दी, ये आपका वीएलआर हो गया अभी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। ओके, एज यू ऑल नो दैट आवर जीएसएम आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ these three subsystem, as we had a discussion about it also, that your GSM architecture consists of RSS, NSS and OSS। तो RSS में हम लोगों ने क्या डिस्कस की? अगेन विल गो थ्रू। RSS के अंदर वी हैव बेस स्टेशन सबसिस्टम, देन वी हैव बेस स्टेशन सबसिस्टम के अंदर बीटीएस और बीएससी दोनों हैं, ठीक है। और उसके बाद में वी हैव मोबाइल स्टेशन। ओके, उसके बाद में आते हैं हम लोग नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। द सेकंड वी कैन सी मॉड्यूल, द बिग मॉड्यूल इन द जीएसएम आर्किटेक्चर इज नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, which consist of mobile switching, mobile services and switching center, and home location register and visitor location register। Okay, so we had a discussion about these three modules also, sorry। And then we are having the last part, the last concept जिसको हम लोग बोलेंगे last sub module, that is operating support subsystem। okay, तो ऑपरेटिंग सपोर्ट, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, बिकॉज देर आर टू सिमिलर टर्मिनोलॉजीज, ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सब सिस्टम भी कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं, तो ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ऑपरेटिंग एंड ऑपरेशन, तो यहाँ कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। तो आज जो हमारा जो बड़ा वाला जो मॉड्यूल है, दैट इज ऑपरेटिंग सपोर्ट सबसिस्टम। ओके, नो दिस इज द थर्ड सेक्शन, वी कैन सी द थर्ड पार्ट ऑफ द जीएसएम आर्किटेक्चर, दैट इज ऑपरेटिंग या फिर ऑपरेशन सबसिस्टम। देखो यहाँ पर ओएसएस लिखा हुआ है, बिकॉज मैंने बुक से निकाला था तो वहां पे लिखा हुआ है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क। ओके, एनीवन दिस और ठीक है, मुझे मुझे लगा किसी ने कुछ बोला, मैसेज किया। ओके, नाउ इन ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर हमारे पास में कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सपोर्ट सब सिस्टम, वी हैव ओएमसी। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, हम लोगों ने देखा था हमारे डायग्राम में, बिकॉज दिस डायग्राम इज ऑलरेडी देयर विद मी। सो एज यू हैव सीन इन द डायग्राम, वी हैव EIR, AUC एंड OMC। सो फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सपोर्ट, देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम लिखा है।
Okay, so in this particular third section, we are having this EIR, AUC, and OMC. Okay, so यहाँ देखते हैं हम लोग. The first is Operation and Maintenance Center (OMC). Okay, the first part. The second is Authentication Center, and the third is Equipment Identity Register. Okay, so coming to the first one, that is Operation and Maintenance Center. You know, this OMC monitors and controls all other network entities. Okay, तो अभी आप लोग डायग्राम के अंदर देखेंगे, तो जितनी भी यहाँ पर नेटवर्क एंटिटीज है, मीन्स नेटवर्क कनेक्शंस है, तो उन सब का मेंटेनेंस आपके OMC के पास में है. इट मीन दैट के इफ देयर इज एनी नेटवर्क ग्लिचेस और इफ देयर इज एनी नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम, देन इट विल बी हैंडल्ड एंड मेंटेन एंड रिकवर्ड बाय OMC. ऑपरेशन सपोर्ट सब, देखो अभी इसका नाम ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम नहीं है, बल्कि इसके नीचे उसने लिख दिया है OSS. OMC इज नथिंग बट ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस सेंटर. ओके, सो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. ठीक है, तो टिपिकल OMC मैनेजमेंट फंक्शंस आर ट्रैफिक मॉनिटरिंग. देखो अब ये सब ये जो टास्क है, जो इसके functions है, that we need to keep in mind, and we need to remember all these functions because these all becomes a viable question. Again, OMC का जो मेन फंक्शन है वो तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द नेटवर्क एंटिटीज है. एंड आउट ऑफ दीज एंटिटीज व्हाट वी कैन से, द ट्रैफिक मॉनिटरिंग, स्टेटस रिपोर्ट ऑफ नेटवर्क एंटिटीज, सब्सक्राइबर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो सिक्योरिटी भी इसके अंदर आ गया, अकाउंटिंग एंड बिलिंग. तो ये सारा काम आपका जितने भी मैंने हाईलाइट किया हूँ, जितने भी मैंने बोर्ड में किया हूँ, सो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट, और वी कैन से functions, or we can say the task of OMC, that is operation and maintenance center. Traffic monitoring, status report, subscriber and security management, then उसके बाद में accounting, number 4, number 5 billing. तो 5 टास्क तो ये हमको समझ में आ गए. ठीक है, मॉनिटरिंग भी इसमें आ गया. So these are the total we can say the 5 different functions which are being done by the OMC, that is operation and maintenance center. कुछ में ज़्यादा तो है नहीं, अप्स एंड डाउन्स है नहीं, बस उतना याद रखना है हम लोग को. Coming to the second one, that is AUC, Authentication Center, which is again attached to the MSC, Mobile Services and Switching Center. Okay, so Authentication Center में as a radio interfaces and mobile stations are particularly vulnerable. Separate AUC has been defined to protect user identity and data transmission. तो basically main जो focus है वो किस चीज़ पर है, आइडेंटिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, आपके डेटा, आपका जो डेटा है. सबसे पहले तो if someone is accessing the data, then he or she has to first authenticate his or herself. Okay, उसको खुद को पहले ऑथेंटिकेट करना है, तो ऑथेंटिकेशन का एक मॉड्यूल हमारे पास सेपरेट आ गया. ठीक है, एंड वी हैव वन सेपरेट सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स आल्सो, दैट फ्रॉम दैट एल्गोरिथम वी कैन इजीली ऑथेंटिकेट एनी ऑफ द सब्सक्राइबर. ठीक है, अब वो कैसे करना है, क्या करना है, दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम. वी विल डिस्कस अबाउट दैट A3 algorithm. Okay, so that is used for authentication purpose. So authentication basically किसके लिए, आइडेंटिटी प्रूव करो भाई, तुम्हारे यूजर है, तुम वही यूजर हो, वही यूजर यूज कर रहे हो, तो आइडेंटिटी चेक करना पड़ता है. ठीक है, एंड अच्छा, आप जब भी कोई कॉल करेंगे तो उसके पहले आपकी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती होगी, लेकिन वो ऐसी रैपिड चेक होती है कि यू वोंट बिलीव दैट के आई हैव बीन आइडेंटिफाइड, या फिर मैं मतलब यू हैव बीन ऑथेंटिकेटेड. सो लाइक ऐसे ऑथेंटिकेशन उनका होगा. And if you are transferring some sort of data, if you are communicating with someone else, okay, then your data, they will make sure that your data will be protected. Okay, so we have to protect your data also, whatever voice call data, and you are sending some text messages, some multimedia, so all the data must be authenticated properly and must be protected from the मतलब के from the other malicious users. Okay, AUC contains the algorithm for, as I told you, we have one algorithm, that is A3 algorithm, which is specially made for the authentication purpose. Okay, so AUC contains the algorithm for authentication purpose as well as the keys for encryption and generate the values needed for the authentication in the HLR. So उसके अंदर मैं आपको जब बताऊंगा तो उसमें आप लोग खुद देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, because you have already done the CSS. I think आप लोगों ने CSS किया है, तो उसमें आप लोग समझ जाएंगे. कहाँ पर है authentication algorithm हमारा, यहाँ पर आएगा शायद इसके बाद में A3 algorithm. See, so we have A3 algorithm, A5 algorithm, A8 algorithm. A3 used for authentication, A5 for encryption purpose. डेटा को कन्वर्ट भी तो करना है ना, अदरवाइज प्लेन टेक्स्ट भेजेंगे डेटा तो कोई भी देख लेगा आपके डेटा को. कोई भी पैकेट ट्रेसर से कैप्चर करेगा, वाईशार्क से कैप्चर करेगा और उसको मतलब ओपन करके चेक कर लेगा.
So for that we have to protect our data, and for the protection purpose we have this encryption algorithm. And the last one algorithm is for generation of the cipher keys. Okay, so for this encryption purpose you need to generate the cipher keys also, and for generation purpose we have A8 algorithms. Okay, so these are the three security algorithms which comes in the GSM, that is A3, A5 and A8 algorithms. Okay, so ये हम लोग का टॉपिक आगे आएगा, तब तक हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो बात करें हमारे, वापस आते हैं यहाँ पर। तो ऑथेंटिकेशन सेंटर में वी नीड द सपोर्ट ऑफ दीज एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट समवन, ऑथेंटिकेट द सब्सक्राइबर, in order to protection in order to protect the data. We need some encryption techniques also. So we have encryption algorithm, that is A5 algorithm, and for the encryption purpose we need to generate the keys also, that is cipher keys, and for the generation of cipher keys we have this A8 algorithm. Okay, so this authentication center will manage all these things. Okay, I hope you are understanding. You know, I'm asking again and again, this is important for all of us. Okay, so आप लोग को ऐसा ना हो कि मैं खाली बस बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, समझ में आना चाहिए। So authentication center, coming to the next one, that is equipment identity register, that is EIR. Okay, now what is this EIR? Basically this EIR is a database of all your IMEI number. Okay, I hope you all know IMEI number क्या होता है आपका। IMEI का कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे? IMEI कोई बताएगा मुझे क्या फुल फॉर्म है इसका? बहुत सिंपल है, अब तक नेट पे सर्च कर चुके होंगे आप लोग। and how you can find out the IMEI number in your mobile phone? अरे कोई तो बोलो। in the battery space. Yes, very good, Azam. We have *#06# ओके। आप जैसे ही जाएंगे तो आपको आपका IMEI नंबर मिलेगा, ठीक है। IMEI नंबर इज नथिंग बट योर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, IMEI, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो स्लॉट्स एक्चुअली, सेटिंग्स अबाउट सेक्शन, ठीक है, चलो। तो we have serial number also, we have IMEI number 1, IMEI number 2, because I'm having two slots, तो यहाँ हो सकता है दो IMEI नंबर देते हैं लोग। तो ये आपके IMEI नंबर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, एंड दीज IMEI नंबर्स आर यूनिक, एंड फ्रॉम दिस वन ओनली समवन कैन ट्रेस यू, समवन कैन someone can detect you। ठीक है, होता है कि आपके जो मोबाइल फोन चोरी हो जाते हैं, सो यू नीड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ योर बिल बॉक्स, आपके सॉरी bill के copy with your application you need to submit in your nearest police station, so that they will search for it, they will give that particular data to the cyber cell, and that cyber cell will trace that particular IMEI number wherever it is। okay, कहीं पर भी हो पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ पर सर्विसेज है अवेलेबल, तो जैसे ही जहाँ जहाँ पर हमारा नेटवर्क है, तो उसके हिसाब से वो कनेक्शन होके आपका मोबाइल जहाँ पर भी हो उसकी लोग को ट्रेस मिल जाती है, एंड दे विल फाइंड आउट द पर्सन। ओके, ऐसा होता है, ठीक है, सही में होता है, मैंने ऐसा होते हुए देखा भी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डोंट फॉरगेट टू अबाउट सेक्शन कंसिस्ट ऑल डिटेल डेटा रिलेटेड टू योर डिवाइस। ओके, सेटिंग में भी होता है, हाँ, यस एग्जैक्टली। अगर आप कभी जाएंगे अपने अबाउट फोन में या सेटिंग में जाने के बाद में अबाउट फोन में, इफ यू विल चेक, देन यू विल आल्सो गेट सम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन। तो एट दैट प्लेस यू कैन गेट योर IMEI नंबर्स आल्सो, ठीक है, वहां से भी मिल सकता है और ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। सो IMEI नंबर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर मोबाइल फोन। अगर किसी के इसमें नहीं है तो समझ लो वो ब्लैक एंड ग्रे मार्केट का फोन है, कहीं से। सो इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं भाई। सो बेसिकली इट्स अ डेटाबेस ऑफ ऑल द IMEI नंबर, दैट इज इट स्टोर ऑल डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर्ड फॉर दिस नेटवर्क। ओके, तो भाई सबका डेटाबेस इनके पास में होता है, जितने भी हैंडसेट, जितने भी मोबाइल इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। फॉर एग्जांपल आई एम कनेक्टेड टू द जियो पार्ट, या फिर नेटवर्क को मैं कनेक्टेड हूँ, मैं एयरटेल को मैं कनेक्टेड हूँ। ओके, तो एयरटेल क्या करेंगे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो उन सब के सब्सक्राइबर के मोबाइल का जो IMEI नंबर्स हैं, सो दे विल स्टोर इन द EIR। ओके, सो इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ द यूजर। ओके, सो मोबाइल स्टेशंस आर मोबाइल, they can move from one location to another location। right now I'm in college, that is in Panvel, और हो सकता है मैं शाम में 5 बजे मैं घर
कल हो सकता है मैं कहीं और चला जाऊँ, ठीक है, मे बी आई विल बी ऑन द मूव बिकॉज आई एम हैविंग मोबाइल फोन, नॉट हैविंग द लैंडलाइन फोन. So if I'm having mobile phone, then I can move everywhere. Okay, so they can be easily stolen, and with the valid SIM, anyone could use the stolen mobile station also. So the EIR has the blacklist of stolen or block list also, that is locked devices also. तो आईआर के पास में मतलब इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के पास में अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसके अंदर जो ब्लैक लिस्टेड जो आईमेज नंबर है, मतलब दोज आर ऑलरेडी स्टोलन. ओके, तो उनको लॉक किया जाता है सो दैट द सामने वाला पर्सन विल नॉट एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन और इक्विपमेंट. ओके, तो ये तो आई थिंक एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन, यू ऑल नो अबाउट दिस वन, बट ये चीजें आपका ईआईआर करता है, ये नहीं पता होगा. ओके, in theory, mobile station is useless as soon as the owner has reported a theft. Okay, आपको तो पता है कि अगर कोई रिपोर्ट, मतलब बहुत से लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं ना, ये एक जिसको बोलेंगे हम लोग एक जागरूकता भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हमारे आस पड़ोस में हमारा या किसी और का मोबाइल फोन चोरी हो गया, देन वी मस्ट इंसिस्ट हिम कि भाई तू जाके पुलिस में जाके कंप्लेंट करना. अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो पुलिस स्टेशन वाले लोग भी आपको ओरिजिनल बिल कॉपी मांगेंगे या फोटो रहे, कम से कम कुछ तो रहे, यू हैव टू सबमिट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. और अगर आप नहीं सबमिट करेंगे तो फिर वो आप पे शक करेंगे कि भाई आपने भी कहीं ना कहीं से चुराया होगा. ठीक है, सो इसके लिए दिस इज रिकमेंडेड थिंग दैट कि व्हेनेवर यू आर बाइंग एनी सेकंड हैंड फोन, अगर आप न्यू में ले रहे हो तो आपको बिल मिलेगा. अगर आप इफ यू आर बाइंग सेकंड हैंड मोबाइल फोन फ्रॉम OLX और फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम कहीं से भी ले रहे हो, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि हमेशा बिल का पूछो और बिल लो. इफ देयर इज एनी मोबाइल फोन, देयर इज एनी हैंडसेट व्हिच इज नॉट विद अलोंग विद द बिल, खाली आपको बॉक्स दे रहा है, बोले बॉक्स तो है ना, ठीक है, तो बॉक्स है तो ठीक है, बॉक्स के ऊपर का आईएमईआई नंबर, आपने मोबाइल के अंदर का आईएमईआई नंबर चेक कर लिया, दोनों को चेक करके हो सकता है कि चलो वो भी हो गया, लेकिन फिर भी अगर जितना हो सके तो आपको बिल की कॉपी रखना है सो दैट यू कैन ट्रेस इट. ओके, आप उसको आगे चल के कहीं पे प्रूव कर सको. Unfortunately, the blacklist of the different providers are not usually synchronized, and the illegal use of device in another operator's network is possible. तो हो सकता है वो एक जगह से ले लिया, अब वो कहीं और गांव में चला गया, दूसरा कोई ऑपरेटर का सिम कार्ड उसमें डाल के उसको यूज कर रहा है. EIR also contains a list of valid the IMEI number, the phone, or we can say the mobile phone which have been stolen. Okay, so उनको लॉक कर देते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, बट दोज आर वो वर्किंग, और जो वैलिड है उनको उनकी जो लिस्ट होती है उसको हम लोग व्हाइट लिस्ट बोलते हैं. ओके, एंड द लिस्ट ऑफ मैल फंक्शनिंग डिवाइसेस, दैट इज द ग्रे लिस्ट. तो ऐसे कुछ लिस्ट होती है हमारे EIR के पास में. तो हमारा EIR और कुछ नहीं है, एक डेटाबेस है, एंड दिस डेटाबेस इज मेंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर. ठीक है, सॉरी यूजर के IMEI नंबर इसमें होते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर. सॉरी, ऑपरेशन एंड सबसिस्टम, क्या था उसका नाम, एक्चुअल नाम ऑपरेटिंग सपोर्ट सबसिस्टम. मैं इसका नाम भूल गया. So in operating and support subsystem, we are having 3 sections. One is OMC, which is focusing on traffic monitoring, status reporting, subscriber and security management, then accounting and billing. So all these are the different functions which are being performed by the operation and maintenance center. Then we are having authentication center, which mainly focuses on the authentication part and for the protection of your data. मतलब आपका data को prevent करेगा from any other malicious user. Okay. Then उसके बाद में we have equipment identity register. Okay, so equipment identity registers is nothing but the database of all the IMEIs. Okay, whether it is a whitelist IMEI number, whether it is a gray list or whether it is a black list. Okay, तो तीनों तरह के उनके पास में लिस्ट होती है, and from that particular list they will easily come to know. Okay, उनका एक पोर्टल होता है बाकायदा, पुलिस स्टेशन वालों, मतलब पुलिस वालों का, पुलिस डिपार्टमेंट का एक अलग से उनकी वेबसाइट है. सो फ्रॉम देयर यू कैन इजीली गेट एक्सेस. अगर वो यहाँ पर अगर ऐसा चेक करोगे तो ट्रैकिंग योर मोबाइल फोन, ट्रैकिंग योर विद IMEI नंबर, तो एक उसमें से वेबसाइट आती है जो पुलिस डिपार्टमेंट की होती है. आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड. तो बहुत सारे वेबसाइट और बहुत सारी साइट ऐसी है जहाँ पर वो बोलते हैं कि आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं. तो ट्रैकिंग कुछ नहीं दिखाता है, बल्कि आपके लोकेशन दिखाता है खाली कि दिस पर्टिकुलर सिम का आपका जो मोबाइल नंबर है राइट नाउ इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र, इंडिया, मुंबई, ऐसा करके बता देंगे आपको.
दैट एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं दिखाएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन रिवील नहीं होती है, सो इट इज ओनली नोन टू द पुलिस डिपार्टमेंट, उन लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं। आई थिंक यहाँ पे हम लोग को स्टॉप करना चाहिए बिकॉज इफ यू मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सो चलो हम लोग कर सकते तो हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है, बहुत टाइम लेगी। सो स्टार्ट करके मैं खाली छोड़ देता हूँ इसको। वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, ओके। नाउ इफ यू जस्ट सी ओवर हियर, सो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। दिस इज द मैंने क्या बताया था आपको, RNO, ठीक है। RNO के अंदर आपका जो है वो R आपका रेडियो है, तो रेडियो सर्विसेज के अंदर रेडियो सब सिस्टम, तो रेडियो सब सिस्टम के अंदर आपका है BSS और MS, ओके। रेडियो सब सिस्टम में आपका है BSS और MS, और BSS में कौन है, BTS प्लस BSC, ओके। ये आपका हो गया RSS। सेकेंड NSS के अंदर आपका है HLR, VLR, MSC, नो सॉरी, पहले लिखना चाहिए MSC को, बिकॉज MSC इज द बिगर मॉड्यूल। So MSC, HLR, VLR, these are the three modules inside the NSS, okay. Then we have third module, we have third section, we have third part, that is operating support system, in which we are having OMC, AUC and EIR. So these three modules are there in the last section, okay. इतना सबको क्लियर है, आर्किटेक्चर हर एक को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आर्किटेक्चर आई होप सबको क्लियर है, सारे मॉड्यूल्स हर एक को पता चले हैं कि कौन सा मॉड्यूल कहाँ पर है, किस काम के लिए है, ठीक है। So everything is known to you. Now we'll be discussing about the interfaces, okay. So basically we are having these three types of interfaces, like UM interface, as you can see in the diagram above the car. You can see UM interface, that is mobile user interface, second is ABIS interface, and third is A interface, okay. These three interface is nothing but the layer between the two modules, okay, or the connection layer between the two modules. You can see over here, this is the mobile equipment and this is the BTS. So in order to connect these two modules or two identity, we have the mobile user interface over here. So we have one interface, we have one क्या बोलेंगे इसको, एक layer है हमारे पास में, ठीक है। And in order to connect your BTS and BSC, we have ABIS interface, you can see in the diagram itself. And for connecting your BSC and MSC, we have one more layer, one more interface, that is A interface, okay. So need to keep in mind regarding these three interfaces, UM interface यानी mobile user interface, ABIS interface and A interface, okay. इसके बाद में अभी आते हैं हम लोग अपने यहाँ पर, the same thing I've mentioned over here, the most interesting interface in GSM is the UM जिसको हम लोग बोलते हैं, which is also called as mobile user interface. The radio interface between MS and BTS is known as UM interface, okay. तो आपका MS यानी मोबाइल स्टेशन, आपका मोबाइल स्टेशन मतलब ये आपका मोबाइल स्टेशन और BTS के बीच में जो इंटरफेस है, that is called as the mobile user interface, okay. तो वही चीज़ है जो मैंने बोला, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। GSM implements SDMA using cells with the BTS and assign an MS to the BTS. अच्छा, यहाँ पे SDMA क्यों बोला यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है? Anyone? SDMA में क्या होता है? स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कमाल है यार, कोई कुछ बोलता ही नहीं। अबाउट सेक्शन कंसिस्ट, जो तो पहले मंसर में लिखा था। एनीवन? SDMA, FDMA, TDMA, CDMA, काफी डिटेल में देखा था हम लोगों ने सबको। कोई नहीं? सलवा याद है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोग को? आ रही है सर। याद नहीं है फिर? याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। So in space division multiplexing we had a discussion that your area will be divided into multiple spaces, okay. तो space में divide करेगी and that space will be handled by one BTS, okay. जैसे मैंने हम लोग हमारे cellular system में होता है, cellular system में कैसे होता है, cellular system में हम लोग वैसे ही करते हैं जैसा हमारा एक पूरा complete area है, okay. ये हमारा complete area है और area के अंदर हम लोगों ने इसको space में divide किया है, ठीक है। ये space, ये space, ये space, ये space
और यहाँ पर हर एक के अंदर एक BTS, एक BTS, एक BTS, एक BTS, एंड दीज 4 BTS इज कनेक्टेड बाय 1 BSC, ठीक है। तो एक आपका BSC है जो कि सारे BTS को कनेक्टेड है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब ये डायग्राम दिमाग में रखो और अब इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। GSM implements SDMA using cells with BTS and assigns an MS to the BTS. Okay, तो मोबाइल स्टेशन को मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लोग आगे वापस जाएं तो if you have any mobile user which is located in this particular cell, ठीक है, आपका मोबाइल यूजर ये वाली सेल के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, तो वो कौन से BTS को कनेक्ट होगा, वो ये वाले BTS को कनेक्ट होगा। अगर आपका यूजर ये वाले सेल में होता तो कौन से BTS को कनेक्ट होता, ये वाले BTS को कनेक्ट होता, ठीक है, ना कि ये वाले BTS को और ना कि ये वाले BTS को। Why it is not connecting to other BTS? Because it is located in its own region, ठीक है। तो ये हमारा था जिसके अंदर हम लोग मतलब ये बता रहे हैं GSM radio interfaces depends on the TDM also, that is time division and frequency division. Okay, and frequency is shared among the different users by dividing the times and slots. So SDMA TDMA के concept. The main thing is that regarding this mobile user interface is the layer between your mobile station and your BTS. Okay, and what will be the type of connection between this particular two entities? There will be a wireless connection, always wireless connection, because यहाँ पर आप देख सकते हो आपका मोबाइल है which is on the move. Okay, and you cannot carry the wires and all that instrument with you by for communicating purpose. You need to carry the wires and all that, okay, because you have to move at different locations, so wire may not be available at all the location. So this is our आपका मोबाइल कंप्यूटिंग में सबसे पहले क्या बोलते हैं हम लोग, while on the move we must get all the services while on the move. Okay, तो ये जस्ट खाली यूजर आपके मोबाइल यूजर इंटरफेसेस के बारे में हमने देखा। वी हैव वन मोर इंटरफेस दैट इज एबिस इंटरफेस। बस उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो हम लोग को पढ़ना है, बाकी तो आपको तो पता है एबिस इंटरफेस कहाँ पर काम आती है। एबिस इंटरफेस इज द लेयर बिटवीन BTS एंड BSC, दैट्स ऑल। ए इंटरफेस इज अ लेयर बिटवीन BSC एंड MSC। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग स्टॉप हो गई है। टाइम इज 12:50। आप लोग के 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया हूँ।